Hello friends. Today we will learn some application of Vedic mathematics in computer sciences and also in applied mathematics. First of all, I want to tell you what Shukdev Maharaj has told about Vedic mathematics. He once told whatever is consistent with right reasoning should be accepted and whatever is inconsistent ought to be rejected whether it comes from the mouth of God himself. Yukti yuktam vachah graham balatapi shukatapi युक्तिहीनम वचा त्याज्यम वृद्धातपि शुकातपि। आप सभी लोगों ने मानस पढ़ा होगा। तुलसीदास जी का आप हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे। वहाँ पे एक कुछ पंक्तियाँ आती हैं कि युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जामो। अब आप देख सकते हैं एक युग का मतलब होता है 12,000 ईयर्स। वन युग इज इक्वल टू 12,000 years. Sahas means 1000. Yojan means 8 miles. When you will multiply all these things, Yug, Sahas and Yojan per Bhanu, Lilyo Tahi Madhur Fal Janu. If you will multiply these things, you will easily calculate distance from Earth to Sun. अगर आप इस चीज को भी मान लें कि हमारे शास्त्र जो हैं ये काफी आउटडेटेड हैं, जो आजकल बहुत लोगों को ये मिथ है, तो इस फैलेशियस बिलीफ के लिए ये कहेंगे कि अगर तुलसीदास जी ने इस कैलकुलेशन को कर लिया था हम लोग के नासा के स्टेब्लिशमेंट से कहीं पहले, तो हमारी भी वैदिक साइंसेस बहुत मॉडर्न रहा होगा। और आप कह सकते हो कि वैदिक साइंसेस के जो एप्लीकेशंस हैं हम लोग सुन सकते हैं। एटॉमिक थ्योरी की बात हम करते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ये पूरे के पूरे आपके न्यूक्लियर मैथमेटिक्स का बेसिक सूत्र है। ये सब चीज़ें बहुत पहले कैलकुलेट हो चुकी हैं। हम आपको कुछ सूत्र बताएंगे, उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैपनीज भी अपने जो है एंशिएंट कल्चर्स के हिसाब से ही जो मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं। जैसे अगर उनको मल्टीप्लाई करना हो 2 into 3, अगर उनको मल्टीप्लाई करना हो तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स विच वी यूज, दे यूज टू ड्रॉ अ ग्राफ फॉर दिस। फॉर 2 you have to draw these 2 horizontal line. For 3 you have to draw these 3 vertical lines. Now you will count the intersection points. There are 6 intersection points, then answer will be 6 according to Japanese mathematics. Japanese एक चीज और करते हैं, अगर आपको कैलकुलेट करना है 23 into 23 instead of our mode of calculation, you have to draw 2 lines for this 2, and for 3 you have to draw 3 more horizontal lines with this gap, and for this 2 you have to draw 2 vertical lines, and for this 3 you have to draw these 3 vertical lines with a gap. Now you have to count intersection points. First cut you have to make here. It's better to draw like this. Second cut you have to draw here, and now you have to count these intersection points. There are 9 intersection points here. You have to write 9 here, and here you have to count these intersection points and these intersection points. So you can see there are 12 intersection points here, 6 here, 6 here, and 4 intersection point here. So you can easily see there are 9 intersection points here. Now you have to write 12 like this, and 4 you have to write like this. Now it will be 9, 2 and 5. Answer will be 529. ये जैपनीज अभी भी इस टेक्निक से ही जो है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी आपको मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं। बहुत वैसे आप कल्चर में आप देखेंगे जैसे अरबिक मैथमेटिक्स है, उन लोगों ने भी डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू मून उन्होंने कैलकुलेट कर रखा है अपने मेथड से। हम लोग के शास्त्र में ये सब चीज़ें अराउंड 10,000 ईयर्स पहले से ही ये दे रखी है, लेकिन हम लोग इसको यूज़ नहीं किए, ये अपनी गलती है। कुछ श्लोक हैं हमारे वैदिक मैथमेटिक्स के, जैसे पहला जो श्लोक है मुझे बहुत पसंद भी है, एकाधिकेन पूर्वेन, दैट मीन्स वन मोर देन द प्रीवियस वन, एकाधिकेन पूर्वेन। इफ यू हैव टू कैलकुलेट 5 into 9, 5 into 9 if you want to calculate, you have to subtract 1 from this 5
it will be 4, and now you have to subtract this 4 from this 9, it will be 5, so it will be 45. Again you can learn, if you want to calculate 8 into 9, you have to subtract 1 from this 8, it will be 7. Now you have to subtract this 7 from this 9, it will be 72. There are two formulas, एक आधिकेन पूर्वेन, one more than the previous one. Second one is एक न्यूनेन पूर्वेन, one less than the previous one. One more thing you can learn, if you have to find the square of any number with 5 at unit place, suppose you have to calculate 25 into 25, 5 into 5 will be 25, and successor of this 2 will be 3. You have to calculate 2 with multiplied by successor of 2, that will be 3. So it will be 2 into 3, that will be 625. और इजी लैंग्वेज हम बताते हैं, अगर आपको 35 into 35 कैलकुलेट करना है तो ये होगा 5 5 सा 25, successor of 3 will be 4, 3 into 4 will be 12, 25. Again you can do like this, 95 into 95, it will be 5 5 सा 25, 9 into 9 plus 1, that will be 10, it will be 1025. This is ekadhikeन पूर्वेन, one more than the previous one, and previous calculation which I have used for this 5 into 9, it was एक न्यूनेन पूर्वेन. You have to subtract 1 from this 5 and you have to subtract this 4 from this 9. This is एक न्यूनेन पूर्वेन, this one is ekadhikeन पूर्वेन. Again if you want to find square of few numbers, like if you have to find the square of 96, अगर आपको 96 का स्क्वायर निकालना है तो पहले आपको देखना होगा ये 96 100 से 100 से कितना कम है, ये कितना कम होगा, 4 कम है, उस 4 का आप स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना आएगा 16, और उस 4 को आप किस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, 96 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका हो जाएगा 9216. इसको चेक कर सकते हैं दोनों मेथड से. अगर आप चाहे 95 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, और उस 5 को आप सब्ट्रैक्ट किस में करेंगे 95 में से, ये कितना हो गया 9025. ठीक है, तो आप क्या चेक किए, ये 96 100 से कितना कम है उसका स्क्वायर कर दिया और उस नंबर को 96 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये क्या होगा 9216. यहाँ भी वही मेथड हमने अप्लाई किया, तो ये हो गया एक न्यूनेन पूर्वेन. एक और छोटे क्लासेस में लोग पढ़ते थे ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10. दैट मीन्स अगर आपको 1 0 0 0, इसको कहते हैं निखिलम नव तश्चर्मम दस्ता. ये तो बहुत छोटी चीज है लेकिन फिर मैं बताऊंगा. अगर आपको इसमें से 7 सब्ट्रैक्ट करना हो तो आप क्या करते हैं, इन सब को आप 9 मान लेते हैं, तो आप क्या करते हो, आप कैरी करके आप दे सकते हो ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10. तो आप क्या करते हो, 9 में 7 हो गया, ये 2, ये भी आपका 9 है, ये भी आपका 9 है, और ये ऑलरेडी आपका 9 ही है. ठीक है, ये कितना 9992, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10. इसको कहते हैं निखिलम नव तश्चर्मम दस्ता. वैदिक मैथमेटिक्स के सूट्स आप कई जगह देखेंगे. आप you might have heard name of Pythagoras. He was a philosopher. Pythagoras, Protagoras and Anaxagoras. All three of them were philosophers. They were brothers. ये सभी फिलोसोफर थे. इन्होंने पाइथागोरस थ्योरम का जो सिद्धांत निकाला, उस थ्योरम को आप वैदिक मैथमेटिक्स के मेथड से आप देखेंगे, आप कोई पुरानी बुक आप उठा के देख लीजिए, ये सारे सूत्र बहुत पहले के लिखे हुए हैं. और इस समय अगर हम लोग सिमेंटिक, आप कह सकते हो सिमेंटिक प्रॉब्लम्स होती हैं जो कंप्यूटर साइंसेस की, लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम होती हैं, आप ये देखेंगे कि कंप्यूटर साइंसेस के लिए जो सबसे एप्लीकेबल लैंग्वेज अगर कोई है तो वो है संस्कृत. क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज की ग्रामर जो है सबसे कॉम्पैक्ट ग्रामर है. और आप किसी भी, आप कह सकते हो, आप 3 और 4 लाइन्स की कोई स्टेटमेंट है, उसको हमको कंप्रेस करके 1 लाइन या 2 लाइन में करना है, तो जो सबसे सुटेबल लैंग्वेज होती है वो संस्कृत होती है. तो
अभी रिसर्चेस चल रहे हैं और प्रॉपरली आपके यहाँ पे अप्लाई करके आप देख भी सकते हो। गूगल पे आप नासा एंड संस्कृत आप देख लो, या एप्लीकेशन ऑफ संस्कृत इन कंप्यूटर साइंसेज आप देख लो, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। तो वैदिक मैथमेटिक्स में आपके 16 सूत्र हैं, उन 16 सूत्रों को आप लोग पढ़िए। मैंने कुछ ट्यूटोरियल्स को मैंने शेयर भी कर रखा है, आप उसको देख सकते हैं। और आप गूगल पे भी आप चेक कर सकते हैं कौन कौन से सूत्र होता है, लेकिन बेटर ये होगा एक आप बुक परचेज कर लें और 16 सूत्रों को आप प्रैक्टिस करें। वीडियोस में बहुत बड़े बना नहीं सकता क्योंकि अपलोड करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो बेहतर ये होगा कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में बाकी सूत्र को भी सीखेंगे। और उससे पहले हम लोग बचपन में पढ़ते आए थे कि द टेबल ऑफ 19 इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग वी ऑफन सी। जैसे इफ यू वांट टू ड्रॉ टेबल ऑफ 19, सो you have to simply write 1, you have to write all odd numbers 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 and 19. And now from downwards you have to write numbers from 0 to 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So this is table of 19. So many tricks are there for teaching your kids about tables of 1, 2, 3, 4 up to 100. You can easily learn these methods from Vedic mathematics. So better to stay at home and practice more and more methods which we have seen in our religious books, our mathematical books. So enjoy this period and stay healthy. Take care. Thank you.